Hello student, today we are discussing about the another very important topic of chapter first biology. The name of the chapter is the living world, and we are discussing about the basic concept of taxonomy and classification. We know very well when we are discussing about that word identification, characterization, classification, taxonomy, these all the words are interlinked with the करेक्टराइजेशन विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पीशीज। ये वो सभी वर्ड हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी स्पीशीज को आइडेंटिफाइड कर पाते हैं, उन स्पीशीज को अरेंज कर पाते हैं, सिस्टमैटिकली अरेंज कर पाते हैं इन आवर इन्वायरमेंट, इन आवर नेचर। So in the previous class we were discussing about the important and main branches of taxonomy. Now we are discussing about the base of taxonomy or the fundamental concept of taxonomy. आज हम पढ़ेंगे कि कौन से फंडामेंटल वर्ड हैं, कंसेप्ट हैं, behalf of which we actually elaborate the word taxonomy. So these are the four words beta you have seen over there. That is called the characterization, identification, classification and nomenclature. First word is the classic characterization. So when we have used the word characterization, in that word we have mainly used the word that is called the morphology. You know the word morphology. In biology beta, the two word mainly utilized. बायोलॉजी में दो important word use होते हैं, बार बार use होते हैं. One is the morphology and second one is the anatomy. When we are discussing about the anatomically characteristics, then we are discussing about the inner characteristics of the living component of the species. And when we are discussing about the morphologically characteristics, in that condition we are discussing about the outer characteristics, physically characteristics of the living organism or the species. For example, अगर मैं आपको कहूँ कि what is the morphologically characteristics of human beings, तो आप बाहर के characteristics बता सकते हैं. The human beings have contained the hairs, the human beings have contained the nose, ear, intestine, teeth, skin. लेकिन अगर मैं कहूँ tell me the anatomically characteristics of the human beings, then we are discussing about the inner characteristics that we have not been seen from the outer factors. For example, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हार्ट, गोल ब्लैडर, लंग्स, ये वो सब वो स्ट्रक्चर हैं जिनको हम अंदर से आइडेंटिफाइड कर सकते हैं. व्हेन वी हैव डाइसेक्ट द स्ट्रक्चर देन वी हैव आइडेंटिफाइड दीज कैरेक्टरिस्टिक्स. सो व्हेन वी हैव डिस्कसिंग अबाउट द कैरेक्टराइजेशन का मतलब होता है किसी भी स्पीशीज को आइडेंटिफाइड करना बेटा उसके बाहर के स्ट्रक्चर को देख के. जैसे कि अगर कोई एनिमल्स हैव कंटेन द विंग्स, अगर किसी एनिमल्स के पंख हैं तो हम उनको कहते हैं बर्ड. यस और नो? और कोई एनिमल्स रैंक के चलता है हम उनको बोलते हैं रेप्टाइल्स. मिल्क सिक्रेटिंग एनिमल्स वी हैव यूज्ड द वर्ड मैमल्स. यानी व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग और द कंसेप्ट ओवर देयर रिलेटेड टू द टैक्सोनॉमी कि हम किसी भी स्पीशीज को बेटा उसके बाहर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहार पे पहचान पाए. इस कंडीशन में वी हैव यूज्ड द वर्ड कैरेक्टराइजेशन फॉर इलाबोरेशन ऑफ दैट वर्ड टैक्सोनॉमी. क्लियर है आप सबको? सेकंड वर्ड आइडेंटिफिकेशन. सेकंड वर्ड इज आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन मीन्स वी हैव आइडेंटिफाइड द स्पीशीज विद द बिहाफ ऑफ देयर similarities and dissimilarities and with the behalf of their morphological appearance, with the behalf of their phylogenetics. किसी के भी behalf पे जब हम किसी species को identified करते हैं and then after we have put that species in a particular group, in a particular phylum, in a particular kingdom, in that condition we have used the word identification. मतलब अगर हमें किसी भी स्पीशीज का बाहर के कैरेक्टर ही नहीं पता
लगेंगे तो हम उनको आइडेंटिफाइड नहीं कर पाएंगे। और अगर हम स्पीशीज को आइडेंटिफाइड नहीं कर पाएंगे तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये स्पीशीज मिल्क सीक्रेट करता है, ये स्पीशीज उड़ सकती है, ये स्पीशीज नहीं उड़ सकती है, ये स्पीशीज पानी में रह सकती है, ये स्पीशीज पानी के बाहर रह सकती है। भाई हम किसी भी स्पीशीज को, किसी भी लिविंग ऑर्गन को तभी तो आइडेंटिफाइड कर पाएंगे जब हमारे पास उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। तो मोर्फोलॉजिकली, यानी जो मोर्फोलॉजिकली क्लासिफिकेशन के बिहाफ पे द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड बिहाफ ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव पुट दीज एनिमल्स ऑफ दिस स्पीशीज इन एन अप्रोप्रिएट टैक्सोनॉमिकली ग्रुप। थर्ड पार्ट इज द बेटा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन वी हैव यूज्ड द वर्ड क्लासिफिकेशन, द वर्ड you always be remember beta, with the classification means we have elaborate the species, we have explained the species with the behalf of their similarities and dissimilarities। हम किसी भी स्पीशीज को उसकी सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बिहाफ पे जब आइडेंटिफाइड करते हैं और सेपरेट आउट करते हैं उनको, इन दैट कंडीशन बेटा वी हैव यूज्ड द वर्ड क्लासिफिकेशन। क्लियर और नो? एंड द क्लासिफिकेशन दैट हैव आल्सो बीन इलैबोरेटेड मोर with the interlink of modern taxonomy, and that is called the taxonomical hierarchy। taxonomical hierarchy word जो होता है that have been elaborate in the next part। next is the nomenclature। what the meaning of that word nomenclature? that word is first elaborate or explained by a very renowned scientist beta, and the name of the scientist is Carolus Linnaeus। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? नोमेनक्लेचर का मतलब होता है कि किसी भी स्पीशीज को उसके नाम के बिहाफ पे हम अरेंज करें, हम पहचानें, उसको एक अप्रोप्रिएट फाइलम में, किंगडम में रखें, दैट इज कॉल्ड द नोमेनक्लेचर। सबसे पहले नोमेनक्लेचर वर्ड के लिए द फर्स्ट साइंटिस्ट कार्लस लिनियस इज यूज्ड द वर्ड दैट इज कॉल्ड द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता था कि किसी भी स्पीशीज को हम आइडेंटिफाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ देयर साइंटिफिक नेम। किसी भी स्पीशीज को अगर साइंटिफिक नेम के बिहाफ पे हम आइडेंटिफाइड करना चाहें तो दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ टू वर्ड बेटा। दो ही वर्ड की हेल्प से हम उस स्पीशीज को आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। वन वर्ड इज कॉल्ड द बेटा जीनस, जिसको हम जेनेरिक बोलते हैं, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड द स्पीसीज। दो वर्ड के बिहाफ पे हम ये वर्ड एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड द जीनस एंड स्पीसीज। अब देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे बाई जो वर्ड है, बाई इसका मतलब होता है दो। बाई, मोनो मीन्स सिंगल, बाई मीन्स टू, ट्राई मीन्स थ्री, टेट्रा मीन्स फोर, सबको पता है आपको। तो बाई मीन्स टू। टू नोमियल नेम्स के बिहाफ पे वी हैव आइडेंटिफाइड द स्पीशीज। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक्चुअली इंडिकेट that behalf of the two words we have elaborate or we have identified or we have put the species in an appropriate taxonomically group। in that case we have used the word binomial nomenclature। यानी जब तक कोई भी स्पीशीज है उसका साइंटिफिक नेम नहीं होगा तब तक हम उसको पहचान नहीं पाएंगे। और हर एक स्पीशीज का साइंटिफिक नेम होता है। कॉमन नेम इज द डिफरेंट नेम दैट वी हैव नॉट बीन काउंटेड इन साइंटिफिकली नोमेनक्लेचर, एंड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज द scientific word that we have used to identify the species with the behalf of their scientific name बेटा। जैसे कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में किसी की भी बात करें, मैं पहले जनरली बोल के बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, द कॉमन नेम ऑफ मैंगो, द कॉमन नेम ऑफ मैंगो इज मैंगो, बट द साइंटिफिक नेम ऑफ द मैंगो इज मैंजीफेरा इंडिका। सो दैट हैव बीन used two words, one is mangifera and second one is indica। when we are discussing about the pea, pea means mutton, and the pea, the scientific name of the pea is Pisum sativum। when we use the word homo sapiens, हमारा जो साइंटिफिक नेम है ह्यूमन बींग्स का वो है बेटा होमो सेपियंस, एंड होमो sapiens, these are the two words, homo and sapiens। so all the species, all the bacteria, protozoa, virus, fungi is mainly identified with the help of two names, one is the genus and second the species। so Pisum sativum, Pisum genus, sativum species। when we use the word Mangifera indica, Mangifera genus, indica species। when we use the word homo sapiens, then homo
जीनस, सैपियंस, स्पीशीज। तो हमेशा ध्यान रखिए व्हेन वी हैव यूज्ड द वर्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो क्या काम है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, आपको समझना है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो वर्ड है, इसका मेन काम होता है कि हम किसी भी स्पीशीज को बिना साइंटिफिक नेम के नहीं पहचान सकते, क्योंकि कॉमन नेम हर जगह अलग होता है। जैसे हम पानी को, हम वाटर को जनरली पानी कहते हैं, लेकिन ये वर्ड जो है वाटर कॉमन नेम है पानी। पानी को अगर हम बात करते हैं उड़ीसा में तो वहाँ पानी को कुछ अलग कहते हैं, अगर हम बात करते हैं केरला में वहाँ पानी को कुछ अलग कहते हैं, अगर हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल में वहाँ पानी को कुछ अलग कहते हैं। तो कॉमन नेम हर जगह अलग होता है, बट साइंटिफिक नेम हमेशा एक होगा। साइंटिफिक नेम ऑफ पानी इज वाटर, H2O। तो साइंटिफिक नेम वाटर जो है वो सब जगह सेम होगा। वाटर यहाँ पे वही वाटर है, उड़ीसा में भी, अमेरिका, जापान, दुबई। सो द मेन कंसेप्ट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज कि साइंटिस्ट ने कहा कि भाई एक ऐसा नाम होना चाहिए किसी भी लिविंग कंपोनेंट का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, एक ऐसा नाम होना चाहिए जो पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में पैरेलली वर्क करे। ये नहीं है कि अगर हम मटर के प्लांट को या तो मटर यूज करते हैं या तो आम यूज करते हैं, मैंगो यूज करते हैं, लेकिन अगर हम मैंगो वर्ड की आइडेंटिफिकेशन करें तो हमें पता ही ना लग पाए कि अमेरिका में मैंगो की कल्टीवेशन क्या है। लेकिन अगर मैंजीफेरा इंडिका ये साइंटिफिक नेम है, इफ यू पुट दैट नेम इन द गूगल देन यू आइडेंटिफाइड और टू आइसोलेट ऑल द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट स्पीशीज, तो आपको सब कुछ पता चलेगा कि जो मैंगो है उसका कल्टीवेशन जापान में कितना है, अमेरिका में कितना है, अफ्रीका में कितना है, इंडिया में कितना है, कितनी प्रोडक्शन है, कितनी स्पीशीज है, ऑल द डेटा दैट यू हैव बीन आइडेंटिफाइड, बट ओनली एंड ओनली विद द हेल्प ऑफ देयर साइंटिफिक नेम। सो दैट इज द मेन कंसेप्ट ऑफ साइंटिफिक नेम। तो हमेशा ध्यान रखिए साइंटिफिक नेम जो है वो कुछ, साइंटिफिक नेम मीन्स पी, पाइसम सटाइवम, तो दैट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट। मटर के प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है वो पाइसम सटाइवम। नोमेनक्लेचर के बिहार पे दो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको हमेशा याद रखनी है। सबसे पहले जब हम किसी भी साइंटिफिक नेम की बात करते हैं, चाहे हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, चाहे हम किसी भी स्पीशीज की बात करते हैं वर्ल्ड में, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, वायरस, किसी की भी बात करते हैं, हमेशा ध्यान रखिए साइंटिफिक नेम में हमेशा पी जो है वो कैपिटल लेटर होगा, और जो दूसरा वर्ड है स्पीशीज उसका जो एस होगा वो स्मॉल होगा। एक बात जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है when we are discussing about the scientific name or binomial nomenclature, then always be remember that is formed with the help of two words, genus and species. So the name of the genus that is called the Pisum. So the first word of the Pisum P is capital in nature, and the second word Stymum, in that case the S is small. हमेशा P कैपिटल और S हमेशा स्मॉल होता है पाइसम सटाइवम में, in case of P plant or in case of that part. Clear or no? Second important thing, if you see any scientific name in any book, then always be remember the language, the word that have been used over there is italics. हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो साइंटिफिक नेम है हमेशा इटालिक एक लैंग्वेज होती है उनमें ही यूज होते हैं, और वो लैंग्वेज जो होती है वो आपको सबको पता है हल्की सी स्लाइटली टिल्टेड होती है, मतलब पाइसम को ऐसे लिखा मिलेगा आपको। अगर आप देखेंगे लैंग्वेज को, इसका वर्ड मैं बता देता हूँ, इटालिक्स में लिखे होते हैं। हम हमेशा ऑल द साइंटिफिक नेम आर आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ दैट वर्ड इटालिक्स। और हमेशा ध्यान रखिए इसमें जो दो इटालिक्स होते हैं, ये वर्ड जो होते हैं वो थोड़े से स्लाइटली टिल्टेड होते हैं, तिरछे लिखे हुए होते हैं। सो दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ दैट टू वर्ड्स। क्लियर और नोट बेटा? सो टुडे वी हैव डिस्कसिंग अबाउट द basic fundamental concept of taxonomy, and that what have been, and that structure of these parts have been elaborated with the help of characterization, identification, classification and nomenclature. तो जब ये चारों चीजें हमारे पास आ जाती हैं, then the complete basic concept of taxonomy is we elaborated in a very well manner. बहुत अच्छे से हम समझा चुके होते हैं। तो कैरेक्टराइजेशन के बिहाफ पे, आइडेंटिफिकेशन के बिहाफ पे, क्लासिफिकेशन के बिहाफ पे और नोमेनक्लेचर के बिहाफ पे हम टैक्सोनॉमी के बेस को तैयार करते हैं।
टैक्सोनॉमी का बेस का मतलब हो गया कि हम क्लासिफिकेशन के बिहाफ पे, आइडेंटिफिकेशन के बिहाफ पे, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के बिहाफ पे, कीमो टैक्सोनॉमी के बिहाफ पे, साइटो टैक्सोनॉमी के बिहाफ पे, हम सबके बिहाफ पे किसी भी स्पीशीज को एक अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट करके एक अप्रोप्रिएट फाइलम और किंगडम में रखते हैं. दैट इज द मेन criteria, that the main concept, that the main function of that word taxonomy beta. So in the next lecture we are discussing about the another important topic of that chapter, the living word, that is called the taxonomy hierarchy. And that taxonomy hierarchy actually elaborate some important words. Behalf of these words we have arranged the species in an appropriate form, in an appropriate structure. Thank you so much.